Hello, sir. हाँ बोलिए। So can you discuss that question which I have asked in previous class? ओहो, मैं टोटली भूल गया था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कभी। ये सब काम नहीं करना है कभी। ये बैच को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई काम ना करो कि अपना बैच का बदनाम हो जाए। ठीक है। एचओडी लोग को हमेशा मैंने फीडबैक अच्छा देता हूँ कि यू पीपल आर वेरी गुड, लेकिन ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट में हम एक मैसेज कर देना, ठीक है, और मैं बता दूंगा आपको वो चीज। नहीं तो फिर इसमें टाइम नहीं कवर होगा। ठीक है ना। Okay, sir. टोटली Okay, sir. दिमाग से आउट हो गया था मेरा। ठीक है। It's अब हम okay, sir. ओके, जस्ट अपने एक व्हाट्सएप में नॉक कर देना मुझे,
फिर मैं आपको और फिर से क्लास में अगर और भी स्टूडेंट रहेंगे इंटरेस्ट तो मैं बता दूंगा। Yes, sir, definitely. Okay, so today we'll discuss another algorithm, Dijkstra's algorithm. So here we'll find out the shortest path. So the Dijkstra's algorithm finds the shortest path from a particular node called the source node to every other node in a connected graph, and it produces a shortest path tree with the source node as the root, and it is profoundly used in computer networks to generate optimal routes with the aim of minimizing routing cost. So I think no, this is a very much important because when we find out the shortest path, so actually practically we use in a networking, so minimize routing cost. So here we apply this one, Dijkstra's algorithm, or any other places also we use this one, Dijkstra's algorithm. So actually here we find out the minimum cost, shortest path. But single source, uh, that means here initial vertices is given or initial node is given. Now we can reach any from any other node, and will that means here we use the shortest path every time we find out the shortest path. So this one is also greedy algorithm. That means here every time we'll get uh, optimal solution and we'll choose the optimal path. So let's see. So here we input a graph representing the network and source node S, and output is a shortest path tree with S is the root node. So now first of all initialize. So first of all I show the block diagram first of all. After that I will explain. So this one is a given. Now we'll find out the shortest path. Suppose you want to traverse A to G, then which one is the shortest path route? So our main objective is to find out the shortest path. So now we start from this one. So here first of all initialize an array of distance of size V, number of nodes. V is a number of nodes where distance S equals to 0 and dist U is infinite. Let's see, I will explain actually what is the meaning. Okay, so that means an array Q containing all nodes in the graph. When the algorithm runs into completion, Q will become empty, and empty S to which the visited node will be added. When the algorithm runs into completion, S will contain all the nodes in the graph. S will contain all the nodes in the graph. Repeat while Q is not empty. So remove from Q the node U having the smallest distance U and which is not in S. In the first run, dist S is removed. Don't be worried. I will explain one by one. Add U to S and making U as a visited. So main formula is here. For each node V which is adjacent to U and update distance of V. So now if distance U plus weight of edge UV less than distance V, then update distance V equals to distance U plus weight of edge of U minus V. So let's see, I will show the block diagram and I'll explain how we'll calculate this one. And this is the main concept of this algorithm. So show the example. Yes. So this is the example. Now actually what actually we'll find out. Suppose A to B
A to B and A to C. So here one term we use here, relaxation. So relaxation, that means this this is a relaxation. That means here we apply this formula. That means update the value of dist V, actual value. Or here that means every time we'll find out the minimum cost or shortest route. So this is the formula, and this formula will apply in everywhere. So first of all, here suppose we are assuming this one is a U and this one is a V. So A, that means here we are assuming U and this one is a V. So now formula is du. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार formula. So if condition is here, condition is if du plus cost, that's why C, u comma v is less than dv. Okay, so ये अगर होता है condition is satisfied, if this one is satisfied, then we can update the value of dv. Can update the value dv जो वहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है dv, that means d within a bracket v equals to du plus c u comma v. ये है जो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दिखाया अभी. सो व्हाट इज डी, डिस्टेंस u plus weight of is u comma v. So now you check this one. If du, so now we are assuming this one. Initially this one is a 0. ये जो है आपका a जो है इसमें जो इसका वैल्यू हम लोग 0 मान रहे हैं, 0. एंड जो यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट, सपोज वी डोंट नो कि ये इसका जो मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, तो नाउ वी आर एज्यूमिंग सपोज इसको इनफाइनाइट. तो यहाँ पे जो इसको इनफाइनाइट वैल्यू मान के चलते हैं dv, और dv का वैल्यू को अपडेट करना है. सो इनिशियली वी आर एज्यूमिंग उसका वैल्यू इनफाइनाइट. ओके, सो नाउ du, सो du का वैल्यू कितना है ना 0 प्लस कॉस्ट ऑफ u कॉमा v. तो u कॉमा v मीन्स वेट, इसका वेट क्या दिया हुआ है ना, वेट ऑफ एज u v, तो इसका वेट कितना है 5 है. सो दैट्स वाई इसका 5 होगा. सो 0 प्लस 5 इज लेस देन dv. सो dv का हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं ना, इनफाइनाइट मान के चलते हैं, तो उसका वैल्यू अभी इनफाइनाइट है. सो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अगर कंडीशन इज ट्रू, सो नाउ 0 प्लस, सो नाउ यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा है इसका क्या हो रहा है ना, 0 प्लस 5. 5 कहाँ से मिला, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे a to b इसका डिस्टेंस क्या है ना uv. तो uv जो यहाँ पे है नाउ वैल्यू इज 5. सो दैट्स वाई 5. एंड dv, सो dv मीन्स यहाँ पे जो इसका वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं, जो इसका डिस्टेंस जो है हम लोग मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट इनिशियली. तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशन इज लेस देन, सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड लेस देन इनफाइनाइट. इसका वैल्यू इनफाइनाइट. जब कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन dv का वैल्यू अपडेट होगा. अपडेट क्या हो जाएगा ना, du प्लस सी यू कॉमा v, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा. दैट मीन्स नाउ a to b के लिए जो रूट हो गया वो इसका जो वैल्यू यहाँ पे 5. ठीक है,
Similarly, A to C. So A to C, now you can check. A, now we are assuming ये जो A है U और इसको V. तो इसी फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना है. तो इस फॉर्मूला में जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे, सो नाउ सेम थिंग. सो हियर 0 प्लस 6, दैट मीन्स हो जाएगा 6. नाउ dv इक्वल्स टू du प्लस cv. तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू अपडेट हो गया. तो दैट मीन्स यहाँ पे 6 हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट ए, दैट मीन्स ए टू बी और ए टू सी के लिए ये रूट जो है आपका अभी जो है ये अपडेट होते रहेगा इसका वैल्यू. तो नाउ दिस वन इज द फाइनल. नाउ ए टू ई, सपोज नाउ ए टू ई, सो ऑब्वियसली डायरेक्टली इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी इनफाइनाइट ही है. सो नाउ यहाँ पर क्या होगा ना, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. तो आगे स्टेप बाय स्टेप में दिखाता हूँ. तो मेन जो है इस डिक्सट्रास एल्गोरिथम का मेन जो फॉर्मूला होगा ये, और इसी को अप्लाई करना है हर एक जगह पे यूवी का फॉर्म में. अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक पॉइंट दिखा रहा है कि डिस्टेंस यहाँ पे 7 नोड है, ए बी सी डी ई एफ जी. तो इनिशियली जो होगा वो 0 और बाकी सबको इनफाइनाइट की. ठीक है. ए बी सी डी ई एफ जी नोड है. तो नाउ वी चूज. अब जो है वन बाय वन इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आगे बढ़े. So now we choose node A from Q. Since it has the lowest distance, value is of 0, put it in S. The neighboring node A are B and C. तो ये का neighboring node क्या है? B and C. So now we update ये जो value है corresponding to B and C according to the algorithm. So the value of the data structure become, यहाँ पे वैल्यू अब क्या होगा, DIST 7. तो यहाँ पे ए बी सी, सो ए के लिए यहाँ पे 0 था, ए टू बी हो गया 5, एंड इसके लिए 6. किसके लिए? सी. एंड अदर जो नोड है उसके लिए इनफाइनाइट है. ठीक है. सो यहाँ पे अभी एक चीज देखिए कि जो वैल्यू है 0 5 6 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसके लिए मैंने एक टेबल का फॉर्म में भी आप लोग को दिखाऊंगा. अभी मैं पहले एक दो स्टेप को समझाने का कोशिश करता हूँ. सो नाउ क्यू जो होगा बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ से एस इक्वल्स टू ए को यहाँ पे ए, दैट मीन्स फाइनल हो गया. ए जो है उसका काम खत्म. ए से अब बी सी डी ई एफ जी जाएंगे. अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट जो होगा, सो द डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ आफ्टर पास आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ. तो अभी देखो यहाँ पे जो मैंने अभी दिखाया था, तो अभी ए 0 हो गया. नाउ इसके लिए जो डिस्टेंस होगा 5, और डी, दैट मीन्स यहाँ पे सी के लिए जो डिस्टेंस होगा वो 6. ए टू बी और ए टू सी. ठीक है. अब इसमें से विल फाइंड आउट चूज विच वन द स्मॉलेस्ट जो है. तो नेक्स्ट पाथ में जो अभी एक स्टेप आगे बढ़े हम लोग, ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो 5, और ए टू सी जो है वो आपका 6. नाउ next path. So we choose node B from Q. Why? Because again we choose which one is the smallest. So now 0 5 6 12 13 यहाँ पे जो value है, so we choose node B from Q since it has the lowest distance value of 5 and put it in S. See? The neighbor node of B are C D E. तो अब इसको चूज किए बी को. अब नेबर नोड चूज करना है. क्या क्या चूज है ना, इसका नेबर नोड हो गया सी डी एंड ई. सी डी एंड ई. तो नाउ यू चेक दिस वन, सी डी एंड ई, सी डी एंड ई. नाउ वी अपडेट डिस्टेंस values corresponding C, D and E according to the algorithm. Now we apply same algorithm. अब यहाँ पे सेम एल्गोरिथम जो मैंने बताया उसको यूवी का फॉर्म में उसको अपडेट करना है. सो नाउ विल चेक दिस वन. तो अभी इसको चेक करेंगे क्या होगा वैल्यू. तो इसका फॉर्मूला क्या था,
तो अभी अभी देखिए इस जगह पे फॉर्मूला सपोज हम लोग चेक करेंगे बी टू ई. So now B to E. So now this value, now DU value is, anyone can say what is the value of DU when you find out B to E? 8 sir. No, B, that means DU. So DU means in the, ये वैल्यू कितना है? अभी देखो अपडेट करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो गया? 5. 5. पहले 0 था. अभी तो हम देख रहे हैं इसको एज ए U और दिस वन इज अ V. B हो गया DU. अभी वैल्यू इसका कौन सा है? 5. एंड ये 5. हाँ, और ये जो वैल्यू है अभी इनफाइनाइट. नाउ वी आर एज्यूमिंग इसका वैल्यू इनफाइनाइट है. अब इसका वैल्यू अपडेट होगा. अपडेट जब होगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे डी यू प्लस सी यू कोमा भी. तो कॉस्ट यू कोमा भी, दैट मीन्स वेट ऑफ, इसका जो वेट क्या है बी टू ई में? 8 सर. 8 है ऑब्वियसली. तो 5 प्लस 8, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा? 13. इसका वैल्यू 13. so that means 5 plus 8, 5 plus 8, इसका वैल्यू 13. so 13 इज लेस देन, इसको क्या बोला? इनफाइनाइट. तो इस ब्लॉक डायग्राम से ज्यादा अच्छा क्लियर होगा. यहाँ पे देखिए, so this one, so now this value, अब इसका वैल्यू कितना होगा? 13. और ये हो जाएगा आपका जो अपडेट वैल्यू होगा, वो अपडेट वैल्यू में क्या होगा? डी वी 16 सर. 16 13 होगा ना? सर. अपडेटेड वैल्यू सर जो अभी होगा सर वो तो 16 होगा ना सर. E2 अगर G मूव करेंगे तो सर. नहीं, अच्छा आगे वाला बोल रहे हैं. नहीं यस नहीं, सर. अभी नहीं, आगे इसका भी अभी हम लोग यू आर एज्यूमिंग जो डी का वैल्यू अभी इनफाइनाइट किए हैं. अब ई तक पहुंचने के लिए डी ये वैल्यू हम अपडेट करेंगे. तो अपडेट वैल्यू कितना होगा? इसका 13 होगा ना? Yes ई के यस sir. लिए, सर. ई के 30. लिए, क्योंकि ई के लिए अब अपडेट वैल्यू कितना होगा? 13 होगा. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट बी टू डी. सो बी टू डी, इसका भी अपडेट वैल्यू क्या होगा? आप लोग अभी सर फॉर्मूला, 12. यस अभी हम लोग, 12 सर. 12 sir. यस अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 12 होगा. इस जगह पे अभी हम लोग का देखिए क्या होगा. ये बी टू सी में क्या होगा? सर 20. लेकिन कंडीशन क्या है इस जगह पे? वो तो कंडीशन, शॉर्टेस्ट है ना सर, तो 6 होगा ना सर. यस, तो वहाँ पे कंडीशन दिया है ना कि अगर लेस देन होगा Yes तो, sir. है ना? तो यहाँ पे देखिए उसका वैल्यू 6 ही रहेगा. ठीक है ना? Yes sir. ये ऑलरेडी हम लोग का फाइनल हो चुका है. फिर भी कंपेयर होता है कि जो स्मॉलेस्ट होगा वो वैल्यू होगा. ठीक है, Yes sir. ओके. सो अभी इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो नाउ वी चूज C फ्रॉम Q सिंस इट हैज द लोएस्ट डिस्टेंस वैल्यू ऑफ 6. सो पुट इट इन S. तो अभी नेक्स्ट कौन सा? अभी जो है हम लोग के पास देखो A और B कंप्लीट हुआ. नाउ व्हिच वन वी चूज? अब देखना है कि C यहाँ sir. पे इसका वैल्यू, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट कौन सा वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास 0, 5, 6, 8, 13 एंड 10 है. अब नेक्स्ट व्हिच वन वी चूज? 6, क्योंकि 5 A B कंप्लीट हुआ. अब इसको चूज करेंगे, किसको? ना 6 मतलब Yes C. sir. सो नाउ C से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? C to D and C to F. F. Yes, C to D and C to F. So now we'll find out. आप यहाँ पे देखो क्या होगा. सर 8 सर. C to D. सर 3. इधर C सर to D D 8. पर, सर D पर जो आ रहा है अपडेटेड वो 8 आ रहा है और F पे 10 आ रहा है, तो हम लोग 8 को चूज करेंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. C2 पहले अभी D देखना है और C2 F देखना है ना? Yes sir.
तो यस सर। अभी जैसे एफ का वैल्यू अपडेट होगा, ठीक है, तो अपडेट होने से क्या होगा, इसका 6 + 4 हो जाएगा आपका 10 यहाँ, ठीक है। अब इस जगह पे देखिए डी का वैल्यू जब होगा तो यहाँ पे कौन सा अपडेट होगा, पहले क्या था 12 था, पहले इसका वैल्यू कितना था 12 सर। 12 था। अब इसमें जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम यहाँ पे देखो 6 और +2 दैट मीन्स 8, ठीक है। यस सर। ओके। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू था आपका क्या था ना, पहले 13 था तो लेस देन, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब डी यू प्लस ये डिस्टेंस होगा, तो डी यू का वैल्यू कितना आया था 6 + 2, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है ना, कोई कंफ्यूज। यस नो तो सर। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो डी यू का वैल्यू अभी कितना है 6 + 2 8, 8 इज लेस देन 13, पहले कितना था 13, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो डी भी का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, तो डी यू प्लस सी भी कमाई, तो डी यू का वैल्यू कितना था 6 + 2, तो दैट्स वाई यहाँ पे 8 हो गया, अभी इसका वैल्यू 8 हो गया, अपडेट हो गया वैल्यू, यस ठीक, सर। ओके। तो अब जो है यहाँ पे फिर से आपको चूज करना पड़ेगा जो स्मॉलेस्ट, सो वी चूज नोड डी फ्रॉम क्यू सिंस इट हैज द लोएस्ट डिस्टेंस, तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 5 6 8, ठीक है, तो 8 जो है आपका चूज करेंगे, तो 8 मतलब वहां पे डी, तो नाउ डी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो उसका नेबरिंग नोड हो गया ई एफ जी, ई एफ यस सर। ई एफ जी, तो नेबरिंग नोड ई एफ जी, अब उसमें हर एक में अपडेट होगा वैल्यू, ठीक है, तो नाउ अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू पहले यहाँ पे 8 था, अभी अपडेट होके 8 है, तो 8 + 2 दैट मीन्स यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा डी ई सर 8 + 9 17 सर। 17, सर 17। यस सर। ओके, कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, नो सर, तो वो शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस लेंगे तो डी इक्वल टू 10 ही रहेगा, 6 + 4। कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, नो सर। तो यहाँ पे दैट मीन्स अभी जी का अपडेट वैल्यू क्या हो जाएगा 8 + 18 10, सर। ओके 8 + 10 18, 8 + 10। 18, ओके, so now we choose smallest number, अब इसमें से जो है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, आइदर वी कैन चूज ई, ई का वैल्यू अभी 10 है, और एफ भी चूज कर सकते हैं, तो कोई भी चूज करें, तो ई का वैल्यू अभी 10, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट अगेन, ई से कहाँ जा सकते हैं जी, जी। ठीक है, so now again we'll calculate the value, so now वो 18 था, अभी अपडेट वैल्यू कितना हो जाएगा 13 सर। 10 + 3। 13. यस 13 हो जाएगा, सो नेक्स्ट वी चूज एफ, अब एफ को हम लोग चूज करेंगे, तो एफ से कहाँ अपडेट, तो अभी एफ को अपडेट करने से फिर से यहाँ पे 10 + 8 18 हो 10 रहा है, + 8 18 होगा सर। यस, तो यस अपडेट नहीं सर। हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये पाथ नहीं जाएंगी, 13। हाँ, तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन हो गया, अब जो है हम लोग को हर एक के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है, अभी हम लोग को वैल्यू मिल गया, हर एक इंडिविजुअल डिस्टेंस जो वैल्यू वो मिला हर एक नोड के लिए, अब आपको जहाँ पे जाना है उसमें शॉर्टेस्ट पाथ आप चूज करेंगे कौन सा होगा, ये हो गया उसका शॉर्टेस्ट वैल्यू हर एक नोड के लिए, हर एक नोड के लिए आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया, जैसे डी ये 5 हो गया, इसका 6 हो गया, ये 8 हो गया, 13 और ये हो गया, अब जो है आपको कोई भी पाथ अगर जाना चाहते हैं, सपोज ए टू एफ
तो इसका जो वैल्यू यहाँ पे है ना उसका वही मतलब 6 4 ये दैट मीन्स इसका पाथ क्या होगा ACF। अब सपोज D, तो D के लिए कौन सा होगा ACD ACD ACDEG। तो G A to G जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ACDEG। So there is just one node Q, so we remove QS. So distance array needs no change. Now Q becomes empty S, so contain all the nodes. So we come to the end of the algorithm. So we will eliminate all the edges of root that are not in the path of any root. So the shortest path tree from source node A to all other nodes are this. तो अभी जो जो रूट हम लोग फॉलो किए थे वो फाइनली जो है ये आपका यहाँ पे मिल गया। अब इसको और डिफरेंट वे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला है, इसको ये जो फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली यू कैन कैलकुलेट। अब इसको इस फॉर्मूला को ही बेसिस पे ये प्रॉब्लम सॉल्व की। तो स्टार्ट। तो इसी को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं। इसके लिए एक्चुअली हम लोग टेबल बनाते हैं। मेन कंसेप्ट वही है। अब इसको एक टेबल का फॉर्म में बना सकते हैं। एग्जाम में जनरली हम लोग तो ऐसे हर एक ड्रॉ करके नहीं बनाते हैं, तो वहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल का फॉर्म में ABCDEFG जितने सारा नोड है उसको लिखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है 1 by 1 अपडेट करेंगे उसी फॉर्मूला के बेसिस पे। तो लेट्स सी आई विल शो टेबल कैसे बनाते हैं। ABCDEFG। ABCDEF और G। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपने इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज क्या क्या इनिशियलाइज किए? ए का वैल्यू क्या है 0, बाकी जितने सारा है वो इनफाइनाइट। तो ओके, सो ये हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट इनफाइनाइट,
ये इनिशियलाइज किए। इनिशियलाइज करने के बाद अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब जब नोड ए, अब नोड ए से अब हम लोग का जो भी है मतलब वर्टिसेस जो है वो क्या है, स्टार्टिंग वर्टिसेस जो है सपोज भी इक्वल्स टू यहाँ पे ए। तो नाउ 0, उसके बाद ए टू बी, ए टू बी जो है अब आपको कैलकुलेट करना है। तो ए टू बी जो हम लोग हरे के लिए जो yes, ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए थे उसके बाद ही ये वैल्यू हम लोग को लिख पाएंगे डायरेक्टली। और ए टू से कितना आया था 6, बाकी जो वैल्यू था वो इनफाइनाइट, क्योंकि बाकी किसी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था। कंट्रोल सी, कंट्रोल। तो ये चीज आप देखेंगे इसमें अगर फॉलो किया एक एक बार 1 by 1 ये जो चीज यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट जो पास 1 1 हुआ, पास 1 में आपका जो वैल्यू हुआ अभी दिस वन, ये जो है आपका 0 5 6 और इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें से जो चूज करते हैं, अब कौन सा वर्टिसेस को चूज करेंगे, जो स्मॉलेस्ट है। तो अभी इसमें से जो देखेंगे कौन सा स्मॉलेस्ट है ना, 5 है आपका स्मॉलेस्ट। So the distance and shortest path after the pass are shown in the following. Okay. So now we choose node B from Q since it has the lowest distance. So lowest distance value of 5. So that's why we choose 5 and put it in S. ठीक है, तो अभी जो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपका क्या होगा, नेक्स्ट जो टेबल आप मतलब एक ब्लॉक डायग्राम बना के इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो चूज करेंगे इसको, ये मतलब हो गया v इक्वल्स टू b, डायरेक्टली यू कैन राइट b, और हम ऐसे ही वर्टिसेस दिखाने के लिए हम उसको लिख रहे हैं v का वैल्यू b। तो एक्चुअल में ये है आपका b, और यू कैन राइट v इक्वल्स टू b। नाउ अब क्या होगा, अब हम लोग का क्या है ना, अब जो है बी से देखना है, बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो बी से आप चेक करेंगे, बी से नेबर रूट क्या है, बी से नेबर E and D. ई डी एन सी। ठीक है, तो ये तो वैल्यू